الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایک چھوٹی سی سورت آیات کے اعتبار سے نازل فرمائی جس کا نام سورۃ العصر رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورت کا نام رکھنے میں اس کے مین پارٹ کو بڑا دخل ہوتا ہے. تو یہاں پر زمانے کی قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یونیک اسٹائل ہے، ایسا ایک طرز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمتوں سے بھرپور کر کے یہاں پر اختیار کیا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قسم کھانے کی وجہ سے محدثین، مفسرین، جمہور امت نے اس پوری ہی سورت کا نام سورۃ العصر رکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھ کر بھیجا، نہیں، بلکہ کسی بھی سورت میں جو محتم بالشان چیز ہوتی ہے، جو اہم چیز ہوتی ہے، اسی کے نام پر نام رکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد کچھ امور کو ذکر فرمایا، تو سورہ عصر کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے بہت سارے فضائل ذکر فرمائے، جن میں سے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی بیان فرمایا. صحابہ کرام جب آپس میں ملتے، اور دو صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جب بھی وہ آپس میں جدا ہوتے تو سورہ عصر جب تک ایک دوسرے کے سامنے تلاوت نہ کر دیتے تھے تو وہ آپس میں جدا نہیں ہوتے تھے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی تقریباً سیکنڈ سب سے چھوٹی سورت یہ ہے، اگر اس میں انسان غور کر لے تو پھر کسی اور چیز میں غور کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی. اور پھر چھوٹے چھوٹے جو جزئیات ہیں، چھوٹی چھوٹی جو شکیں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو عوامر ہیں، مسائل ہیں، دلائل ہیں، وہ تمام انہی کے اندر میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اتنی عظیم شے کو ذکر کیا. سب سے پہلے قسم کھائی زمانے کی، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، یا میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، نوع انسانوں کی جو یہ ایک قسم ہے زمین پر، تمام کے تمام خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جو حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی فہمائش کرتے رہے یا پھر صبر کی وصیت کرتے رہے. تو یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے زمانے کی. اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہیں، باقی تمام کا تمام اللہ کے نبی کو وہ الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا تسبوا الدہر فانی انا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دو اس لیے کہ میں ہی تو زمانہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ زمانے کو اپنی ہی طرف منسوب کیا.
क्योंकि ज़माने में जो तग़य्युरात रूनुमा होते हैं, जितने भी तग़य्युरात होते हैं, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही होते हैं। तो ये कहना कि मेरा तो वक्त खराब चल रहा है, इसी तरह से ये कहना कि ज़माना तो बहुत खराब चल रहा है, इसी तरह से ये कहना कि ज़माने ने तो हद कर रखी है, तो दरअसल ये इंसान गोया के अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई चीज़ों पर या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर ताने मारता है। इसीलिए इंसान को सिर्फ अपनी हिदायत की तरफ मुतवज्जे रहने का हुक्म दिया और मज़ीद दूसरों की खराबियों की तरफ उसको न देखने का हुक्म दिया। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई ज़माने की। अब ज़माने में लैल भी है, रात भी है, नहार भी है यानी दिन भी है। इसी तरह ज़माने के अंदर अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी हैं। ज़माने के अंदर ज़मीन भी है, आसमान भी है। ज़माने के अंदर चांद भी है, सूरज भी है, सितारे भी है, पहाड़ भी है, ऊंचे ऊंचे दरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है, बहते बहते अजीम शान दरिया भी है। इसी तरीके से ज़माने के अंदर अच्छे काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं, बुरे काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। इसी तरह रोज़ ज़मीन पर ज़माने के अंदर मक्का मुअज़्ज़मा भी है, मदीना मुनव्वरा भी है, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मकामात भी हैं जो गैर काबिल ज़िक्र हैं। तो ज़माना और ज़माने की चीज़ें जिसको कहते हैं अल अस्र वमा फीही, ज़माना और ज़माने की तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उनकी कसम खाई है। तो गोया कि पूरी कायनात की कसम खाकर इरशाद फरमा रहे हैं, कोई दुनिया का जर्रा कोनो मकान का ऐसा नहीं छोड़ा कि जो यहाँ पर मुराद नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि कसम ज़माने ही की क्यों खाई है? उलमा ने लिखा है इसलिए कि आगे जिन चीजों का अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा फरमा रहे हैं, नेक अमल करने की, ईमान लाने की, एक दूसरे को हक बात की वसीयत करने की, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करने की, तो ये तमाम आमाल सालिहा ज़माने के अंदर ही वुकू पजीर होते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं जो ज़माने से बाहर हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर ज़माने की कसम खाई और इंसानों को झंझोड़ा और कहा कि अगर मेरे बयान करदा 4 रूल्स जो है अगर इनको फॉलो नहीं किया, इनकी इत्तिबा नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो बिला शुबा हर एक इंसान खसारे में है। मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं। इन 4 कामों में से 2 काम ऐसे हैं जो इंसान की अपनी जात से मुताल्लिक है और 2 ऐसे हैं जो अपनी जात के वास्ते से दूसरों से मुताल्लिक। तो ज़माने की कसम खाकर सबसे पहले इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बनी इंसान या नोए इंसान खसारे में है, घाटे में है, इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। सबसे पहली शर्त, सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले तोहफा जो इंसान की जिंदगी में हो सकता है वो है ईमान, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल मकबूल नहीं, ईमान के बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बहुत से लोग हैं बड़े बड़े भंडार चलाते हैं, बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम किए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, इसी तरीके से बहुत ज्यादा लोगों के गम में शरीक होते हैं, मगर दौलत ईमान नहीं। तो जब दौलत ईमान नहीं तो उनका कोई एतबार नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की शर्त लगा दी कि अगर ईमान नहीं तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं, या फिर कोई भी अमल मकबूल नहीं, या फिर ये कह लीजिए कि हर एक अमल मरदूद है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, ईमान लाकर गोया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अमान में आ गया। ये ऐसा ही है जैसा कि कोई कैदी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ये कह दे कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ, अब मेरा कोई भी ऐसा गलत इरादा नहीं है, और वो पुलिस कस्टडी में आ जाता है। उसके बाद फिर पुलिस वालों का उस पर अटैक का खतरा नहीं रहता, फायरिंग का खतरा नहीं रहता। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक हद मुकर्रर की है, जो ग्रीन जोन बनाया है, जो उसके अंदर एंट्री कर लेगा सिर्फ उसी का अमाल और उसी के जो है अच्छे काम मोतबर होंगे, इसके अलावा किसी के भी काम मोतबर नहीं होंगे। जैसे
बहुत सारी जगह ऐसी है कि वहां पर टिकट लेकर जाना पड़ता है। इसी तरह फ्लाइट में है, इसी तरह हमारी ट्रेन में है, इसी तरह कुछ बस भी होती है जो गवर्नमेंट बस होती है। अगर वो टिकट नहीं है, चाहे आपने भले ही लिया हो, लेने के बाद उसको वहीं पर चबा दिया, फाड़ कर डाल दिया, आपकी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं। तो जब टिकट नहीं है, आपकी तमाम मेहनत जो आप चलकर गए हैं, आपकी वो तमाम काविशें, वो जज्बा, जिस जज्बे के साथ आप किसी जगह को देखने के लिए, किसी जगह की जियारत करने के लिए गए हैं, वो काबिले कबूल नहीं जब तक कि आपके पास टिकट नहीं। इसी तरीके से आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जब तक आपके पास अपना कोई शनाख्त कार्ड नहीं है, जब तक आपके पास बोर्डिंग पास या टिकट नहीं है, आप भले ही कहते रहिए मैं फला का बेटा हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ, अभी जस्ट मेरे हाथ से गिरकर गायब हो गया है, उनको कुछ भी नहीं सुनना। उनको सिर्फ चाहिए तो आपको टिकट चाहिए, वो दीजिए, तमाम हुज्जतों को खत्म करके दाखिल हो जाइए। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इहाता खींच दिया है, एक घेराबंदी कर दी है। जब तक के ईमान का टिकट हाथ में नहीं होगा, तब तक कोई भी अमल नहीं होगा, मतलब काबिल कबूल नहीं होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, इसीलिए ईमान की कंडीशन सबसे पहले लगाई, क्योंकि अगर इंसान के पास ईमान की दौलत आ गई, उसके बाद अमल सालेह में उसकी तरफ से कोताही हो गई, लेकिन वो किसी भी अमल सालेह का इनकार नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि नमाज जरूरी नहीं, वो ये भी नहीं कहता कि हज जरूरी नहीं, और वो ये भी नहीं कहता कि सदका जरूरी नहीं, ज़कात जरूरी नहीं, बस सुस्ती में करता नहीं, अंजाम तक नहीं पहुंचता, अवामिर को बजा नहीं लाता। तो ऐसे केस में और ऐसी सिचुएशन में अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन धुलाई करने के बाद, गुनाहों से पाक साफ करने के बाद, बिल आखिर किसी की सिफारिश से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से और अपनी रहीम और करीम जात से जहन्नम से एक न एक दिन उसको जरूर निकालेंगे। तो सबसे पहली शर्त मैंने बताया कि दो चीजें ऐसी हैं जो अपनी जात से मुताल्लिक है, और दो चीजें ऐसी हैं जो अपनी जात के वास्ते से दूसरों से मुताल्लिक है। तो वो दो चीजें, उनमें से पहली है ईमान। ईमान हर एक इंसान को अपने लिए जरूरी है, और इस क्वालिटी में जितना भी इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, उतना ही ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के करीब होता चला जाता है। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत लंबी तफसील बुखारी शरीफ के अंदर की है, हर ईमान यज़ीद व यनकुस, क्या ईमान बढ़ता या घटता है। बहुत सारी लंबी चौड़ी तफसीली बहसें हुई हैं, उनका खुलासा यही है कि नफ्स ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नफ्स ईमान तो यही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो नूरानियत है, वो आमाल की वजह से बढ़ती रहती है। जितना इंसान के पास यकीन बढ़ता चला जाता है, जितना इंसान के पास इल्म ज्यादा होता चला जाता है, तो उसी एतबार से इसकी खासियत, इसकी नूरानियत और इसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए ईमान लाने के बाद उसको चमकाने की मेहनत भी बहुत जरूरी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और उसके बाद तमाम चीजों से हमने रास्ता खत्म कर दिया, अब हमें कोई मतलब नहीं, हम है टनाटन सुन्नी, ऐसा नहीं। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी जात से मुताल्लिक है वो है ईमान। ईमान लाने के बाद बहुत से ईमान वाले भी तो जहन्नम में जाएंगे, और फिर ये कहना कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला एक न एक दिन तो जहन्नम से निकालेंगे, ये उससे भी बड़ी दलेरी है, उससे भी बड़ी जुर्अत है, और उससे भी बड़ी जहालत है, हमाकत है। भला वो इंसान जो दुनिया में किसी का एक तमाचा तक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम की आग को कैसे ही कहकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो रहा है कि ठीक है एक दिन तो अल्लाह ताला जरूर निकालेंगे। फिर क्या गारंटी है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम ईमान सलामती के साथ ले जाए। आमाल सालिहा एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त इंसान को ईमान पर वफात देते हैं, और आमाल सालिहा से बेएतिनाई, आमाल सालिहा से इंसान का जी चुराना, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान
अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते हुए अपना ईमान दुनिया ही में खत्म करके चला जाता है। इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है कि जो ईमान हम लाए उसको लेकर भी चले जाए। उसकी तौफीक अगर मिलती है, उसका रिजल्ट अगर मिलता है तो वो सिर्फ आमाल सालिहा से मिलता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बाद फरमाया वअमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए हो। नेक काम में दुनिया की हर एक भलाई शामिल है, किसी एक को अलग से करने की बयान करने की जरूरत नहीं है। आप वाजिबात अदा करते हैं वो भी ईमान के साथ साथ अमल साले में दाखिल है। फराइज की अदायगी से आप फारिग हो जाते हैं तो वो भी ईमान के साथ अमल साले में दाखिल है। इसी तरीके से आप ऐसे काम करते हैं जिससे आप अपने अखलाक को बुलंद करना चाहते हैं, वो आप पर वाजिब नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं, आप पर लाजिम नहीं, कंपलसरी नहीं, तो वो भी चीजें ईमान के साथ अमल सालेह में दाखिल है। आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, बेवाओं को आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से जो भी हो सके पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हर एक गरीब नादार का ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीजें अमल सालेह में दाखिल है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि ऐसा अमल सालेह ज्यादा मोतबर है जो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक, जिसमें आम तौर पर अच्छे अखलाक शामिल हैं। इंसान नमाज पढ़ता है तो किसी पर क्या एहसान कर रहा है, नहीं पढ़ेगा तो पिटेगा, सर में जूता बजेगा। इसी तरीके से ज़कात दे रहा है तो किसी पर क्या एहसान कर रहा है, माल दौलत जिसके पास आया है तो ज़कात देगा, किसी पर क्या एहसान है। उलमा ने लिखा ये चीजें फराइज में है, अमल साले तो ये भी है, लेकिन ये तो फर्ज है। इनसे हटकर अपने अंदर आमाल सालिहा की क्वालिटी को पैदा करना, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सिल मन कतअका, कि जो तुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहे उससे हद इम्कान जोड़ने की कोशिश करो। वाक़ु अम्मन ज़लमका, और जो जुल्म तुझ पर करे अगर बर्दाश्त करने के काबिल वो जुल्म है तो हद इम्कान बर्दाश्त करने की कोशिश करो। व अहसिन इला मन असाअ इलैक, और जो तेरे साथ बुरा मामला करे तो उसके साथ भी अगर हो सके अच्छा मामला कर। यह है अखलाक हसना, जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में फरमाकर बात भी को खत्म कर दिया और नबी को कहा, ए नबी इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बस तेरी सिफत तो यह है कि बाद खुदा की हिस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद तू ही सबसे बड़ा है और तू तो ऐसी सिफत का मालिक है कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बुलंद अखलाक पर तू कायम है। इट्स नॉट सच चीज, ये बहुत हाई लेवल की क्वालिटी होती है कि इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी अदम को जाहिर करे, लाशे होने को जाहिर करे, और ये इंसान दूसरों को बताए कि मैं कुछ नहीं हूँ, अना लाशे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। तो अमल साले से मुझे ये बात बतलानी पड़ी कि उलमा ने लिखा है कि अमल साले में वो चीजें दाखिल ज्यादा है कि जिनकी इंसान को वाजिब होने के एतबार से, इसी तरह फर्ज होने के एतबार से अदायगी जरूरी नहीं, बल्कि अपने नफ्स के एतबार से, इसी तरीके से अपने अखलाक को संवारने के एतबार से तौफीक जिनकी मिल जाती है, ऐसे आमाल करना ये ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा है। इसी को अमल साले कहा जाता है। दो चीजें हो गई जो इंसान के अपने जात से मुताल्लिक है, और दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के वास्ते से सामने वाले से मुताल्लिक है। वतवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक बात की फरमाइश करते रहे, वसीयत करते रहे, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। वसीयत कहते किसको है? वसीयत कहते हैं किसी को छोटा बनकर आजिज़ी के साथ अच्छे अंदाज में जायज काम कर देने की वसीयत करना, या हुक्म कर देना। बड़ा है तो हुक्म कर देना, छोटा है तो दरख्वास्त कर देना, इस चीज का नाम है वसीयत। इसीलिए आमतौर पर इंसान जब दुनिया से जाने लगता है, माल दौलत छोड़कर मरता है, तो आमतौर पर वो कहकर जाता है कि बेटा ध्यान रखना अपने छोटे भाई का, ध्यान रखना अपने बड़े भाई का, थोड़ा कमजोर है उसका ख्याल रखना, और मेरा फला फला जो हिस्सा है उसमें तो कुछ थोड़ा जायद इसको दे देना, ये बेचारा गरीब है, बेचारा भोला भाला है। इसीलिए उसकी दरख्वास्त को वसीयत कहा जाता है।
क्योंकि वो भी आजिज़ी के साथ, मिन्नत समाजत के साथ इसी तरीके से अच्छे अंदाज में एक तरह की नसीहत करके जाता है, तो इसको वसीयत कहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इशारतन अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी ये दे दी कि जब हम किसी को हक और सब्र की फरमाइश करेंगे, वसीयत करेंगे, तो सबसे पहले बी सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, गुड नेचर्ड पर्सन, कि सबसे पहले हमें क्या बनना है? ऐसा बनना है कि हमारी जुबान अच्छी हो, ऐसा बनना है कि हमारे अखलाक अच्छे हो, और ऐसा बनना है कि हमारा स्टाइल, लहजा और हमारा बात करने का जो तर्ज है, जिसको हम फारसी में तर्ज तकल्लुम कहते हैं, वो शीरी होना चाहिए। अदरवाइज वो नसीहत नहीं होती, फिर वो ऑर्डर चलाना हो जाता है। आप देखिए हमारे माशरे में, हमारी जमातों में, इसी तरीके से हमारे इज्तिमात में आजकल जो इख्तिलाफात है, बिगाड़ है, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जुबान का जो इस्तेमाल था वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब सामने वाले को वो हुक्म लग रहा है, और इंसान की फितरत है उसे हुक्म बर्दाश्त नहीं। वो हुक्म सुन सकता है या तो अल्लाह का, या अपने वालिदैन का, या फिर अपने किसी अजीज का। इसके अलावा वो दुनिया में किसी का हुक्म सुनने के लिए तैयार नहीं। जैसे रमजान में अपनी मस्जिद में आपने ड्रामा देखा, सिर्फ इतनी बात के सामने से हट जाएगी, यहाँ पर गुजर रहा है, लोगों के गुजरने की जगह है, कितना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ, क्यों? मुझे हुक्म क्यों किया? आराम से भी तो कह सकते थे। तो ये नेचुरल बात है, ये फितरी बात है कि इंसान जो है हुक्म बर्दाश्त नहीं करता। तो सबसे पहले, वरना अल्लाह तबारक व तआला ये भी कह सकते थे कि मगर वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और जिन्होंने सच्ची बात लोगों को बतलाई और जिन्होंने सब्र की तालीम की, बल्लिगू बिल हक व बल्लिगू बिस सब्र, ये भी कह सकते थे, लेकिन नहीं। तवासौ बिल हक, वसीयत के लफ्ज से अक्स करके एक लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि समझ आ जाए कि यहाँ पर स्पोकन होना बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और मैं तो खुद कहता हूँ कि नसीहत जब तक नरम अल्फाज, नरम गुफ्तार, इखलास नीयत और इसी तरीके से दुरुस्त बात और सच्ची बात पर मुश्तमिल नहीं होगी, वो नसीहत हो ही नहीं सकती। वो नसीहत तो छोड़िए, वो दूसरे को अच्छी बात की तरफ बुलाने के लिए कही गई बात भी नहीं कही जा सकती। वो सिर्फ एक हुक्म है, दिल की भड़ास है, या फिर अपने आप को बड़ा समझ के, आमिर समझ के एक हुक्म देना मकसूद होता है। तो दूसरों से मुतालिक जो दो हुक्म है, सबसे पहले उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, व तवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहे। अब यहाँ पर जरा मुख्तसर सी बात ये समझिए कि यहाँ पर हक से क्या मुराद है, सब्र से क्या मुराद है। तो आम मुफस्सिरीन ने कहा है कि हक बात की वसीयत करना, इससे मुराद है कि अकाइद की दुरुस्तगी की तालीम देना, तबलीग करना और उसकी वसीयत करना कि भाई अपने अकाइद दुरुस्त रखो, और तमाम आमाल सालिहा खुद बखुद इसके अंदर आ गए। और सब्र से मुराद है तमाम तरह के गुनाहों से बचने की तबलीग करना कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों में बड़ी नहूसत रखी है, इसलिए आप गुनाहों के करीब मत जाना। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हक से मुराद यहाँ पर सिर्फ अकाइद सहीहा है। आप अकाइद सहीहा की गोया के लोगों को नसीहत कीजिए, उनको नेक अमल की, नेक काम की नसीहत कीजिए और बुरे कामों से उनको रोकिए। तो गोया के अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दूसरी ताबीर में ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। और एक और राय है यहाँ पर बहुत लतीफ और बहुत मानाखेज, वो ये है कि इंसान आमतौर पर रास्ते से जो हटता है वो या तो शुबहात की बुनियाद पर हटता है या शहवात की बुनियाद पर हटता है। या तो उसके दिमाग में शुबहात आ जाएंगे, नहीं ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला कैसे दे सकते हैं, भला नमाज को हुक्म अल्लाह तआला क्यों देंगे, उसको क्या जरूरत है कि हम सुबह उठे, अपने लिहाज को उतारे, ठंडे पानी से वुजू करें और इतनी दूर चलकर मस्जिद में जाएं। शैतान अजीब अजीब और गरीब तरह के शुबहात दिमाग में डालता है। तो या तो शुबहात की वजह से दीन से हटता है या फिर ख्वाहिशात की वजह से दीन से हटता है।
शुबा उसको कुछ नहीं है, इस्लाम को और दीन हक को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन नफ्सानी ख्वाहिशात का इतना गलबा है कि नींद आ रही है तो नमाज छोड़कर सो जाता है। इसी तरीके से माल है बहुत ज्यादा, ज़कात का इकरार करता है लेकिन लालच की वजह से ज़कात नहीं देता। इसी तरीके से कोई भी फर्ज ये अदा नहीं करता। तो बहुत से उलमा ने लिखा है कि वतवासो बिल हक से शुबहात को दूर करने की वसीयत मुराद है कि भाई अपने अमाल की जो है क्वालिटी को बढ़ाइए और जो शुबहात है उनको दूर कीजिए। और इसी तरह वतवासो बिल सब्र से ख्वाहिशात से और गुनाहों से रुकना मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौका अता किया है इसको इस्तेमाल में लाइए, इस जिंदगी को यूं ही जाया न कीजिए। ये जिंदगी है जो मोम की तरफ पिघली चली जा रही है। वो जैसे एक नए साल पे कहा जाता है कि एक ईंट और गिर गई दीवार हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम दी है वो एक मुतअय्यना तौर पर हर एक को अता हुई है। तो इसी तरह अगर उसको गफलत में गुजारते रहे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का जो फर्स्ट फरमान है इन्नल इंसान लफी खुस्र, के तमाम इंसान ही खसारे में है, तो उन्हीं की फहरिस्त में अल्लाह ना करे हमारा शुमार हो। मगर जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके के मुताबिक सोच समझकर जिंदगी गुजारते हैं तो फिर वो उन लोगों में शामिल होते हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसकी तफसीर रमजान से तकरीबन एक महीना पहले भी हुई थी। उस वक्त इस सूरत की और इन तीनों आयत की दूसरी तरह से तफसीर पेश की गई थी। तो आज गोया कि इसी सूरत की आप इसको नशिस्त सानी कह सकते हैं, जिसमें तमाम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का क्या कहना है, भला इमाम साहब क्या कहते हैं, इसी तरीके से सहाबा किराम का क्या अमल था, इस सूरत की कितनी अहमियत है, कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कसम खाई है इस कसम की कितनी अहमियत है, क्यों इसकी कसम खाई है, कसम खाने के बाद क्या बयान किया है, कसम में और उस चीज की कसम खाई गई है उसमें क्या मुनासिबत है। आज इन चीजों पर बात हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, अमल साले की तौफीक दे और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में हमें मशगूल रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नह मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, जो बीमार है सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा, जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए उनको बरी फरमा। मौला करीम जो मुसीबत ज़दा है सबों की मुसीबतों को खत्म फरमा। मौला करीम जिनके ऊपर कर्ज है गैर से असबाब उनके मुहैया फरमा। मौला करीम जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, जेलों के अंदर बंद है, जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, मौला करीम उनके साथ में खैर का मामला फरमा। हमारे फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। मौला करीम गैब के दरवाजों गैब की नुसरत अता फरमा। मौला करीम जालिमीन को हिदायत ताम अता फरमा, वरना उनको निशान इबरत बन। मौला करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना। मौला करीम मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जो लोग इस दुनिया पानी से रुखसत हो चुके हैं सबों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा। हमारे मुख्तसर से दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफैल में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।